That's why people who use UPI a lot lose money a lot as well. Don't invest early. Starting or maintaining a mutual fund might be a bad decision for you. Credit card बहुत गंदा चीज है जिनका कोई ट्रैक नहीं रहता, यहाँ पैसा गया वहाँ पैसा गया. Here are my top 3 financial advices of all time. Disclaimer: I am not a financial expert who is even qualified to give you an advice. So before making any financial decision, किसी expert से पूछ लेना. Take my advice as a pinch of salt. Whatever I'm going to tell you in this video, I have studied either from books, YouTube, or from some of my mentors. So let's start. Starting or maintaining a mutual fund might be a bad decision for you. If you are just starting out and you are not having an emergency fund, minimum is 6 months and 12 months is ideal. Imagine कुछ भी रीजन की वजह से अगर आपका जॉब चला गया या फिर अचानक आपको बहुत पैसों का जरूरत हुआ और शायद आप अभी आपका स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो नहीं है अभी, बट आपका 3 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है. डज इट मेक एनी सेंस? 3 लाख रुपए मैंने बहुत बढ़ा के बोला है. आई डोंट थिंक सो 3 लाख रुपए भी होगा. सो बिफोर डूइंग एनीथिंग, the moment you get a salary, my advice will be, or I will do is, so number one thing you are going to get after going a salary is start maintaining an emergency fund. ताकि कुछ भी होता है, you are secured there. You cannot be financially independent until and unless you are financially disciplined, and you cannot be financially disciplined if you are not financially stable. First step after you get a job or a good source of income is to start maintaining an emergency fund. So you can start a mutual fund after these 3 checkpoints. That is, you have built an emergency fund. Number 2, you have a health insurance for obvious reasons. Number 3, a life insurance so that anything happens to you, the family is at least covered. Number 2, no credit card until and unless you have built a financial discipline. Just now I said you cannot be financially independent until and unless you are financially disciplined. So what does that mean? Imagine you are having like 10,000 rupees in your bank account and you want to buy something worth 3,000 rupees और वो आपके बैंक अकाउंट से खरीद लिया. तो जब आप वो 3,000 रुपए का कुछ खरीदते हो तो अभी आपके बैंक में 7,000 रुपए होना चाहिए. अभी आप देखते हो यहाँ पे आपको 10,000 रुपए का कुछ और पसंद आ जाता है, आपको फिर से खरीदने का मन होता है. अभी आप देखेंगे कि मेरे बैंक में 7,000 रुपए ही है, तो आई थिंक आई शुड नॉट बाय इट. एंड दिस इज अ सिचुएशन. नाउ थिंक ऑफ दिस इन अ डिफरेंट सिचुएशन. आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं और आपको फिर से 3,000 रुपए का चीज पसंद आता है, बट आप उसे क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो. व्हेन यू आर यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं जाने वाला है. सलून यू विल फील लाइक आपके पास पैसा तो है, बहुत पैसा है, बैंक अकाउंट में तो नहीं दिखेगा 3,000 गया है वहां से, आपको लगेगा कि 10,000 ही है. आपके सामने फिर से एक और 3 या 4,000 का कुछ आता है सामने, आपको फिर से दिखेगा अरे बैंक अकाउंट में 10,000 तो है, एक काम कर देता हूँ लोन ही ले लेता हूँ. आप फिर से क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे क्योंकि जब आप डिजिटली पैसा यूज करते हो आपको पता नहीं चलता कि आप कितना खर्चा कर रहे हो. दैट इज ऑल्सो द रीजन. दैट्स व्हाई पीपल हु यूज यूपीआई अ लॉट lose money a lot as well. समझ नहीं आता ना, everything is done on a click. They don't feel like they are losing money. They are just feeling like they're clicking on buttons and they still have the money. So until and unless you are building this financial discipline of when you are saying no to yourself, obviously while meeting your needs, सिर्फ तभी I'll prefer go and get a credit card because I agree whenever you are using credit card there are a lot of benefit, but जो financially बहुत ही indisciplined है उसके लिए एकदम सही चीज नहीं है. क्रेडिट कार्ड बहुत गंदा चीज है जिनका कोई ट्रैक नहीं रहता, यहाँ पैसा गया वहाँ पैसा गया, वो लोग डायरेक्टली बिल देखते हैं और वो अच्छा इतना आया है दे देता हूँ, ऐसे ही करके बिल का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एंड देन यू कैन सी देम इन क्रेडिट कार्ड ट्रैप्स. जस्ट सर्च इन यूट्यूब, आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कि अपने इस चीज के बारे में बोल रहे हैं कि एक क्रेडिट कार्ड का बिल मिटाने के लिए उनको और 2-3 क्रेडिट कार्ड लेना होता है और फिर उनका वो स्टार्ट होता है. ऐसे लूप में फंस जाते हैं लोग. बट देयर आर स्मार्ट वेज टू यूज दैट. खरीदने मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज द फर्स्ट थिंग टू हैव बिफोर हैविंग अ क्रेडिट कार्ड. थर्ड एडवाइस, डोंट इन्वेस्ट अर्ली इन समवन एल्सेस स्टॉक. आई एम श्योर आपने ये चीज बहुत बार सुना होगा, बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए जितना भी पहले. इवन वॉरेन बफेट सेड दैट ही हैड आल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अर्ली. अगर मुझे इफ आई डोंट रिमेंबर ही स्टार्टेड इन हिज 20s और समथिंग, इससे भी पहले या फिर 13, आई डोंट रिमेंबर. आई विल जस्ट पुट द नंबर हियर. He says that he is late. If you want to get rich really slow, then you can go and in your 20s start putting every money you are having in stock market, crypto or any wealth schemes.
My actual third advice is invest in the most riskiest asset, yet the asset in which you have control over, that is yourself. It's not philosophical, it's actually logical. I am giving an example. This example is not quite thought, I just came to my mind, but I know you can include a lot of other cost here. But imagine you are spending 3 to 4 lakhs on buying some stocks. Suppose you have purchased, let's say, 50 index funds. You have purchased the index stock. As per the past data, it is supposed to yield 16 to 17% of return. But now imagine your parents is investing 3 to 4 lakhs in your education, and after 3 to 4 years, you will get an opportunity to earn 3 to 4 lakhs per year. Within 1 to 2 years, when you actively work, you can easily recover that. This is 164% return. Now just compare it with buying someone else's स्टॉक। किसी और के बिजनेस में अगर आप पैसा डालते हो इस एज में, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तभी मिलेगा जब आप बहुत सारा कैपिटल उसमें डाल रहे हो। बहुत सारा कैपिटल जब मिलेगा जब आपके पास होगा कैपिटल। आपके पास अभी कैपिटल कहाँ से होगा? होना तो नहीं चाहिए। अगर हुआ भी तो आई डोंट प्रेफर यू इन्वेस्टिंग इट इन अ स्टॉक मार्केट और इन दैट थिंग until and unless you have done your research completely, but investing in a good course, good skill, जो कि सिर्फ आप ही बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, might give you a lot better result। अगर मैं खुद से एग्जांपल देता हूँ तो फिर मैं पैसा लगा के I buy programs, mentorship courses for like video editing के लिए I have bought a lot of courses। मैं hands on में बहुत प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो I am getting better as well। तो मैं देखता हूँ ना, I am spending some thousand, 3 to 4,000, then तो मुझे easily 6 to 7,000 एक क्लाइंट easily मिल जाता है, because I have this skill, I can now solve the problem। तो अभी हो जाता है। जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हो ना, पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाता है। दूसरों को एसेट में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो टाइम लगेगा, और बहुत जल्दी कमाना होगा तो फॉर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा उसमें, जो कि शायद आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिगिनर्स का वीडियो है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन 2025 एंड ऑल्सो शायद ये मेरा पहला वीडियो होगा इस चैनल के लिए। इससे पहले मैं कहीं और वीडियो बनाता था, बहुत पुरानी बात है वो, फिर कोई बात नहीं, मैं अभी बात बोलता हूँ। अभी ये 2025 चल रहा है, एंड इफ आई सी द डेट, अभी क्या चल रहा है, लेट्स सी, अभी जून चल रहा है। इट्स ऑलमोस्ट जून 28 when I am shooting this video, जून 28, 2025। शायद बाद में मेरा भी ओपिनियन बदले या फिर इससे भी ज्यादा इवॉल्व हो, तो या देन अगेन डोंट ब्लाइंडली लिसन टू मी। मैं बस वही शेयर कर रहा हूँ जो कि मैं सीखा हूँ, एंड इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम माय ओन क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स। गलत हो सकता है। इफ यू थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग, जस्ट लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ हियर इज अ बोनस। खत्म थोड़ी हुआ है। नाउ फोर्थ, ये एडवाइस फाइनेंशियल नहीं है। आई रेड दिस फ्रॉम एलेक्स हॉर्मोजी। ही सेज कि आप जो भी जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हो ना, आपको वही मिलता है। बहुत ही सिंपल लगेगा ये चीज, आई नो, बट जस्ट इमेजिन, आप अपना कैलेंडर खोल के देख लो, आप लास्ट 7 या 8 दिन कहाँ पे थे, आपने आपका टाइम को कैसे यूज किया है। मोस्ट प्रोबेबली आपका सिचुएशन आज अभी जैसा है, शायद उसकी वजह से आप शायद लास्ट 7 दिन से वेब सीरीज देख रहे थे, आपका 1 वीक का भी पेंडिंग काम बाकी है, या फिर आप शायद एक हफ्ते से हर रोज 1 या 2 घंटे के लिए, सपोज वीडियो एडिटिंग करता हूँ मैं, तो मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं 1-2 घंटे के लिए हर रोज वीडियो एडिटिंग प्रैक्टिस करता हूँ। आज का मेरा सिचुएशन क्या होगा, जब भी मुझे कुछ काम मिलेगा मैं बहुत जल्दी कर लूंगा। नंबर 2 is your friend circle. Your emotion, your thinking might get manipulated by the people you are around with. So आप जिनके साथ बात करते हो वो कैसे सोचते हैं, या फिर the people who are really close to you, how they deal with joy, how they deal with fear, how they deal with opportunities. It kind of makes you like that. Third is पैसा। अगर आप अपना बैंक अकाउंट खोल के देख लेते हो आपने कहाँ क्या स्पेंड किया है, फिर आपको पता चल जाएगा। फिर आप एक चीज देखेंगे कि आपका जो भी है शायद वहाँ पे लिखा हुआ है। You might get your answers there. I'm giving another example. Suppose 40% of my money in this month have been spent in Zomato, Swiggy or any food ordering app. और इससे पता चलेगा कि मैं मोटा हूँ। It will make me fat. If I'm eating from outside, it will make me fat. So it can be a thing. और आपने Netflix, Amazon Prime, Spotify, YouTube Premium सब खरीद लिया है। YouTube Premium खरीद सकते हो, अच्छा है। या but then again क्या हुआ, Netflix ज़्यादा देखेगा तो आप में उतना एनर्जी नहीं होगा। अगर आप में उतना एनर्जी नहीं है, शायद बहुत सारे शोज देखने की वजह से नहीं है। If you are having information overload, maybe these are the reason. अभी स्विच करते हैं। इमेजिन आपने ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन लिया है, आप यूडेमी प्रीमियम का कोर्स लिया है, या फिर यूडेमी प्रीमियम का कोर्स नहीं, सॉरी, यूडेमी प्रीमियम का एक सब्सक्रिप्शन है आई थिंक, जहाँ पे प्रीमियम कोर्सेज फ्री में मिलते हैं। फ्री में नहीं, आई मीन सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन पे करोगे और आपको मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। बस वो प्रीमियम वाला बैच होता है जहाँ पे, वो वाला। दीज आर ऑल्सो इनपुट्स जो कि आपको बोलेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है। दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो हियर एंड आई नो ये वीडियो उतना अच्छा नहीं है। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। देन अगेन मैं बात फिर से बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। व्हाटएवर आई एम सेइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड स्टडिंग
ऑनलाइन, द थिंग्स जो कि मैं करने वाला हूँ अपने लाइफ में, जो कि मैं फॉलो करने वाला हूँ मेरे लाइफ में, और शायद मेरे लिए काम कर जाए पर जरूरी नहीं है आपके लिए भी काम करे। खुद का डिसीजन हमेशा खुद के दिमाग से लेना। ये जो 4 चीजें बोले हैं, यू माइट नॉट एग्री टू दीज थिंग्स, तो अगर आप एग्री नहीं करते हो तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। शायद बिकॉज इफ आई एम रीमेकिंग दिस वीडियो अगेन इन फ्यूचर देयर माइट बी मोर देन 3 पॉइंट्स। ये 3 तो फिर से डालूंगा, ये ऑल टाइम है। देन इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड, फील फ्री टू ऐड इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट मी टू क्रिएट मोर वीडियोस या फिर इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू एंड आई विल रिप्लाई टू एवरीवन्स कमेंट्स। जस्ट लेट मी गेट सक्सेसफुल। मैं फिर किसी को रिप्लाई नहीं करूंगा। अभी कमेंट कर दो, अभी सबको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। एनीवेज, हैव अ गुड डे।